السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تمام تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے سرشتی کو پیدا کیا اور اس سرشتی میں بسنے والے خصوصاً ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے مارگ درشن کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے رفتن فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اپنے موضوع کی طرف چلوں اس سے قبل آپ لوگوں سے مدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی باہر کھڑے ہوں یہاں پر تشریف لے آئیں، جگہ کافی خالی پڑی ہوئی ہے، اور مقصد جلسے کا یہی ہے کہ جلسے میں چل کر جو معزز و مکرم علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ان کے قیمتی بیانات کو سن کر اپنی زندگی میں داخل کریں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور بولنے والے خود، میں اگر بولوں اس سے قبل میرا بھی ایک مقصد ہے کہ میں جو بات کہوں اس پر خود عمل کروں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ صف میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ تو میں جو بات کہوں یہ میری بھی کوشش ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، اور آپ لوگ بھی اس جلسے سے اٹھے تو کچھ لے کر جائیں، تاکہ آپ کا جو بھائی دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہیں، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی محنت کامیاب ہو، یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو یہاں سے ملے گی۔ میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں کھڑا ہوا ہوں، بات وہی ہے جو رب کے کلام میں موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ ہاں، کہنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، سمجھانے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، اور میں اپنی بات کو اور مزید آگے بڑھانے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں جو بات بولوں اگر اس بات میں کہیں بھی کوئی غلطی نظر آئے
तो अपना छोटा भाई समझ कर मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, अब्दुल्ला मोहम्मदी इसी स्टेज से तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है। इसलिए मेरी इस्लाह करिएगा जरूर। मुझे जो मौजू दिया गया है बहुत ही अहम मौजू है, इस हालात को मद्देनजर रखते हुए कि आज नौजवान मर्द हो या औरतें हो, जिस तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं या कर रहे हैं, क्या वो इस्लाम के दायरे में रहकर बसर कर रहे हैं या कर रही हैं? कुछ चंद नसीहतें मैं नौजवानों के ताल्लुक से और अपनी माँ और बहनों के ताल्लुक से भी कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास, आपको यहाँ पर गौर कराऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू, कहीं पर कहा है या अय्युहल काफिरून, कहीं पर कहा या अय्युहल मुनाफिकून। तो जहां पर कहा या अय्युहल लज़ीना आमनू तो खुसूसन ईमान वालों के लिए है, जहां पर कहा या अय्युहल लज़ीना काफिरून वो काफिरों के लिए, जहां पर मुनाफिकों का लफ्ज़ है वो मुनाफिकों के लिए, यहाँ पर कहा या अय्युहन नास, या लोगों। अब इसमें जितने भी इंसान इस दुनिया में बसने वाला है सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे मुखातिब किया कि ऐ लोगों अल्लाह से डरो। किससे डरो? मेरी आदत है साथ में लेकर चलने की, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं किससे डरने के लिए बोल रहा अल्लाह? अल्लाह से डरो। क्या लोगों अल्लाह से डरो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पैदाइश की हकीकत बयान कर रहा है यहाँ पर कि जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उससे उनकी बीवी हम सबकी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनसे तमाम मर्द और औरत को बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अल्लाह से डरो जिसके नाम से एक दूसरे से मांगते हो और रिश्तेदारी तोड़ने से भी बचो। आज हमें कोई से कर्ज लेना रहता है तो यही कहते ना कि अल्लाह के वास्ते हमें 5,000 रुपए या 2,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको लौटाएंगे। इल्ला माशाअल्लाह कोई लौटाया कोई नहीं लौटाया, लेकिन मांगता तो अल्लाह के नाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के आगे ये भी कह रहा रिश्तेदारियों को तोड़ने से भी बचो, यानी रिश्तेदारी अरहम जो रहम की जमा है, रहम करना, रिश्तेदारियों के साथ रहम करना, हुस्न सुलूक करना, नाता कभी ना तोड़ना उनसे, इसके बारे में अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। तो इसका जो निचोड़ निकलता है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को पैदा किया और उनको दुनिया में फैला दिया। आज दुनिया में जहां मर्द बसने वाले वहीं पर माँ और बहनें भी हैं, लेकिन क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करने के बाद नहीं छोड़ दिया कि अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार करे? बोलिए, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करने के बाद नहीं छोड़ दिया कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मन जैसा हमारा मर्जी करेगा, जैसा हमारा मन कहेगा वैसे ही जिंदगी गुजारे? क्या ऐसा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? नहीं। हमारी रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी किया और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला खत्म कर दिया और कह दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन तरीका अगर किसी जात के अंदर है तो वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका पर गौर करना है कि आज नौजवान जो जिंदगी गुजार रहा है, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही गुजारा, क्या ऐसा ही बताया? जिस तरीके से नौजवान आज कपड़ा पहन रहा है, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पहना या ऐसा ही बताया? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा कहा नौजवानों से कि नौजवानों अपना होलिया अपने मन के मुताबिक बनाओ? कभी ऐसा कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बता दिया कि ऐसा होना चाहिए लिबास, ऐसा होलिया होना चाहिए, पहनाओ ऐसा होना चाहिए। फिर आप आगे बताएं हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक अदा कैसे करना चाहिए। फिर हुकूकुल वालिदैन, माँ और बाप के साथ हक कैसे अदा करना है। फिर हुकूकुल लिबास, रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त अहबाब के साथ कैसे हक अदा करना है। फिर हुकूकुल ज़ौजैन, बीवियों के साथ कैसे हक अदा करना है। बच्चों की तरबियत कैसी करनी है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत से लेके, अखलाक से लेके, किरदार से लेके, मामलात से लेके, तिजारत से लेके, यहाँ तक इस्तिंजा करने का तरीका भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम। बहुत ज्यादा हम लोग तकारीर और दर्स दुरूद सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वाबुल नास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा इल्म हो गया इस्लाम के बारे में। अब ये कोई नहीं कह सकता हमें नहीं मालूम, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी आज नौजवानों का हाल क्या है और मेरी माँ और बहनों का हाल क्या है। आइए सबसे पहले मैं अपनी माँ और बहनों की तरफ चलता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाली औरतें हैं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है। सबसे पहले उधर चलता हूँ कि आइए मेरी माँ और बहनों, आपका मकाम था क्या और आपने अपना मकाम कहाँ पर पहुंचा दिया। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस मकाम पर पायद किया और आप अब किस मकाम पर हैं, कैसे कीजिएगा। आइए पहले दुनिया की कल्चर का, मुख्तलिफ मज़ाहिब का, मुख्तलिफ कौमों का तहजीब क्या है, कल्चर क्या था वहां पर, उसका नक्शा मैं आपके सामने खींचता हूँ। मुशरिके मक्का जब उनको खबर होती थी कि उनके घर में बच्ची जन्म हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा कुरान में खींचा है ना। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनको बशारत दी जाती है, देखिए अरबी के वर्ड पे गौर कीजिए, बुश्शिरा बशारत, खुशखबरी। अल्लाह ताला बच्ची को नेमत की खुशखबरी देता था तो उनका मुंह उतर जाया करता, चेहरे उतर जाया करता, तो दिल ही दिल में वो घुटने लगता। ये तवार मिनल कौम, अपने कौम वालों से मुंह छिपाया फिरता रहता था, मुंह छिपाया करता था, क्या जवाब दूंगा कौम वालों। सोचता था कि रखूं कि मार डालूं। अला सा मा यहकुमून, क्या बुरा फैसला करते थे। कम से कम उस दौर में बच्ची को दुनिया में आने दिया करते। आज मुसलमानों, उम्मत मुहम्मदिया अपने आप को कहलाने वाले हम और आप, मेरी माँ और बहनों, इस्लाम जैसे अजीम नेमत पाने वालियां मेरी माँ और बहनों, कभी गौर किया कि आज हमारा क्या हाल। अल्लाह अकबर शर्म आती कहते हुए। और मेरे नौजवान भाई, आपका दिल कैसे गवारा था। बच्चा पेट में आया, 4 महीना हुआ, 5वां महीना हुआ, अल्ट्रासाउंड कराओ, चेकअप कराओ, लड़का है अहलन व सहलन, वेलकम। लड़की है अल्लाह अकबर, पेट में ही उसको अबॉर्शन करा दिया जाता है। पहले के दौर वाले तो कम से कम देखना चाहते थे कि बच्ची होती कैसी है। आज के दौर वाले तो कहते हैं बच्ची चाहिए ही। एक औरत की दुश्मन। एक बाप कैसा बाप है वो कि बच्ची आने से घबराता है। अल्लाह ताला तो कहता है कि तुम रिस्क नहीं देते, रिस्क मैं देता हूँ, जरिया तुम है, काहे को इतना घबराते हो। ये दौर
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और भी इसके दौर है, मुझे वो वक्त बड़ा मुख्तसर दिया गया जो कि 1.5 घंटा बोला गया था, यहाँ पर आगे पता चल रहा 1 घंटा है। तो उस दौर में बच्चियों को जब बसारत दी जाती थी, जब बच्ची 4 साल हो जाती थी, उसको ले जाकर बाकायदे तौर से मेले के बहाने से, घुमाने के बहाने से, ये शॉर्ट कर रहा हूँ, हदीस बड़ी लंबी है, घुमाने के बहाने से ले जाकर उसे दफन कर दिया जाता, ये हाल था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सिलसिला खत्म हो गया था। लेकिन आज मुसलमानों ये सिलसिला फिर से शुरू कर दिया आप लोगों ने, बस सूरत तब्दील हो गई। वहां आने दिया जाता था, आने के बाद 4 साल के बाद दफन किया जाता था, यहाँ 7वां या 7वें महीने में ही अबॉर्शन करा दिया जाता। और हम कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, शर्म नहीं आती हमें आपको कहते हुए? अच्छा लगता है क्या मुसलमान है, नाम अब्दुल्लाह रहमान है, अच्छा लगता है? अगर मैं ये काम करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने आप को नाम अब्दुल्ला रखकर, नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्ची अल्लाह की नेमत है। और मुख्तलिफ कौम की तहजीब मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस्लाम ने क्या मकाम दिया और तो उसके बारे में आपके सामने बात रखता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पेपर कभी पढ़ते होंगे आप लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो न्यूज पेपर है, ईयरली 1 साल के अंदर 1 करोड़ 12 लाख लेडी, 1 करोड़ 12 लाख लेडी, इसका बिजनेस इस इंडिया के सरजमीन पे किया जाता है। आए दिन उसको बेचा और खरीदा जाता है। और यही कौम जिसे यूनान लोग कहते हैं, वहां पर मर्द की मिल्कियत समान हुआ करती थी औरतें। रोमन के अंदर, ये आपकी दुनिया का कुछ नक्शा मैं आपके सामने खींच रहा हूं, इसको ध्यान में बैठाइएगा और यह किस्सा कहानी समझ कर मत सुनिए, अमल का जामा पहनाने के लिए सुनिएगा। रोमन के अंदर खातून समान तसल्ली कहलाई जाती, उसके साथ खेला जाता था। उस कौम में रोमन के अंदर फिलोरा नाम का एक खेल हुआ करता था। उसमें करते क्या थे, लेडी को यानी औरत को, खातून को नंगा कर दिया करते। नंगा करने के बाद उसको दौड़ाया करते थे, मर्दों के मजमे के अंदर नंगी उस खातून को दौड़ाया करते थे, हैविंग पॉइंट तक दौड़ाया करते, और फिर साथ में कोई भी मर्द उसके साथ गुस्ल भी किया करते। और आइए ईरानी तहजीब क्या कहती है, ईरानी कल्चर के अंदर घर की लोनी को, नौकरानी को विरासत का हक कभी नहीं देते और उसके साथ गलत काम भी किया करते। मिस्री कल्चर के अंदर, मिस्र के अंदर भाई बहन शादी उनके क्या जायज था और किया करते थे आपस में। चाइना के अंदर मशहूर मौलिक एक गुजरा है जिसका नाम कन्फ्यूशियस है, उसने कहा खातून मर्द की गुलाम है, मर्द जैसा हुक्म देगा खातून को वो काम करना पड़ेगा। यूरोप का कल्चर क्या था, यूरोप का कल्चर ये था कि उसको खरीद और फरोख्त किया जाता था। बर्तानिया के अंदर 6 पिंस में बेचा गया 1948 से पहले। 1948 से पहले औरतों को, एक औरत को उसने 6 पिंस में बेचा गया। एक इंसान ने अपनी बीवी को 1950 में, तो 1948 में बेचा गया था, फिर कानून बंद हो गया था या बेचा नहीं जाएगा, लेकिन 1950 में उसने फिर बेचा। जब उसके ऊपर मुकदमा दायर हुआ तो आदमी अपने वकील से कहता है कि 1948 में कानून चलता था, तो जब वो कानून सही था तो मैंने कौन सा गलत किया। तो जज जानते क्या फैसला देता, वो 1948 से पहले का वाकया था, ये 1950 से, लिहाजा ये बंद कर दिया गया। बात तो वही है, हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। आज भी 1 रुपए का संकेत
या 1 रुपए का शैम्पू भी बगैर खातून के उसके कपड़े को उतार उसके जिस्म की नुमाइश किए बगैर उसे प्रोडक्ट उसका सेल नहीं किया जाता, बगैर नुमाइश किए आज भी। और इस इंडिया के हिंदुस्तान के सरजमीन में एक स्कॉलर गुजरे जिनका नाम राजा राम मोहन राय, रिफॉर्मर थे वो। उन्होंने उनके दौर में 1829 के दौर में उनके भाई की बीवी, उनके भाई का इंतकाल हो जाता, उनका भाई मर जाता। तो जब भाई मर जाता है तो उनके खानदान वाले कहते हैं जब तुझे भी इसके साथ सती होना पड़ेगा। ये वाहिद शख्स था राजा राम मोहन राय, जिसने आवाज उठाई थी कि लोगों ये कब तक जुल्म होगा कि औरत को उसके पति के साथ सती किया जाए, ये कब तक जुल्म होगा, लिहाजा ये बंद किया जाए। कम से कम ये अल्लाह का बंदा आवाज तो उठाया था। और मुसलमानों, हमारा और आपका क्या हाल है? हम सरेआम ये बुराइयां देखते हैं, और देखने की तो दूर की बात, वो तो खरीद और फरोख्त का मामला था। आज अगर हमारी खुद की बेटी जन्म लेती है तो उसको पेट में ही दफन कर देते हैं। क्यों मेरे भाई? राजा राम मोहन राय एक गैर मुस्लिम था, कम से कम उसने एक आवाज उठाई। आज इस सरजमीन पे कौन है ऐसा शख्स कि जो इसके खिलाफ भी आवाज उठाए? है कोई? नहीं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको बैठाने के लिए बहुत सारे लोग, आवाज उठाने उसके साथ ताउन करने के लिए शायद माशाअल्लाह अल्लाह जिसको हिदायत दे दे वो आगे आगे, वरना उसको पकड़ के बैठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इज्जत से नवाजा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आओ मेरी माँ और बहनों अपने मकाम को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 2631 2321 के अंदर ये हदीस नकल करते हैं। वो हदीस इस तरीके से, मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामति अना व हुवा व दम्मा साबिअहु, यानी जो शख्स 2 लड़कियों की परवरिश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो शख्स 2 लड़कियों की परवरिश की पालक किया, बड़ा किया, शादी किया, वो क़यामत के रोज ऐसा होगा जैसे मेरी 2 उंगलियां। और एक रिवायत में होता है वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाना चाहते हो ना? बोलो, जन्नत में जाना चाहते हैं? जन्नत के लिए यहाँ पर आए ना कि अल्लाह ताला हमारी कोई नेकी कबूल कर ले, इसीलिए तो इतना दूर से सफर करके भी आए, इसीलिए यहाँ पर आप बैठे हुए हैं ना कि अल्लाह ताला हो सकता है हमारी इसी ने कोई नेकी कबूल कर ले। तो जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताया। और मेरी माँ और बहनों, आपकी इज्जत के लिए, आबरू के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में कहा, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, कि खातून अपने घरों के अंदर करार पाए, वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलन की तरह, जाहिल जैसे पहले के कौम में जाहिल औरतें घुमा फिरती थी, आज भी वैसे ही किया करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मना किया है, लेकिन कभी हमने कुरान को खोलकर शायद इल्ला माशाअल्लाह हमारे भाई और बहन पढ़ते हो, इल्ला माशाअल्लाह, वरना रमजान मुबारक आएगा, सर पे टोपी होगी, हाथ में मिसवाक होगा, पैंट जो लगता था 24 घंटा वो रमजान मुबारक में ऊपर चला जाएगा। मेरी माँ और बहने के हाथों में कुरान मजीद होगा और सरों पे दुपट्टा होगा, नजरें निगाहें घड़ी पर होंगी कि जोहर का वक्त कब होगा, असर का वक्त कब होगा, मगरिब कब होगा, ईशा कब होगा, फजर कब होगा। ये सिर्फ रमजान मुबारक के लिए आलम होता है हमारा और आपका। क्या इस्लाम या कुरान या ये शरीयत सिर्फ रमजान मुबारक के लिए नाज़िल किया गया? बताइए, बोलिए, क्या ये इस्लाम, ये शरीयत, कुरान मजीद सिर्फ रमजान मुबारक के लिए
नहीं, इसे 12 महीना पढ़ना है। मुसलसल पढ़ने वाली जो दुनिया में सबसे ज्यादा किताब पढ़ी जाती है वो वाहिद किताब कुरान मजीद है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। जब हम इसे मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, इस खत के ऊपर गौर करेंगे रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, तो मेरी माँ और बहनों आपकी वकार, आपकी अहमियत इसके अंदर मिलेगी। कि औरत को घरों में रखो, औरत छिपाने वाली चीज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलकर तालीम दी माँ और बहनों को। नौजवानों, ये आपके लिए भी तालीम है। हम सबके पास माँ और बहनें होती हैं, हम सब घर के गार्जियन है, हम सब आया, हमसे पूछा जाएगा। कल क़यामत में रब पूछेगा, तुझे 2-2 बेटियां दिए थे, तुझे 2-2 बेटा दिया था, 3-3 दिया था, 10-10 दिया था, किसको फोन लाइन पे लगाया, कभी उसे कुरान की तालीम दी, कभी पर्दे के बारे में बताया, कभी सीरत मुबारका की तालीम दी, क्या जवाब दोगे? नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी बात करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न हिब्बान की हदीस है, हदीस जिल्द नंबर 12 हदीस नंबर 413 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल मरातु औरतुन फइदा खरजत तसरफहु शैतान व अक़रबु मा तकूनु रहमतु रब्बिहा व हिया फी क़अद बैतिहा। अल मरातु औरतुन, औरत छिपाने वाली चीज है। अगर किसी के पास एग्जाम्पल 10,000 रुपए होगा, ये कैच करते हुए जाएगा, बोलिए आगे वाले बोलिए, चलिए पीछे वाले नहीं बोल पा रहे हैं, कैच करते हुए जाएगा, 10,000 रुपए होगा, कैच करते जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? डर लगा रहेगा कोई लूट ना ले, यही डर रहेगा ना, कोई डाका ना कर ले, डाल दे, कोई लूट ना ले। अल्लाह अकबर, उस पैसे को कितना छिपा कर रखते हो। जेवर है तो बेटी के जहेज के लिए छिपा कर रखते हो, बैंक में जहेज में दामाद खरीदने में काम है, छिपा कर रखे हो उसको। औरत उस पैसे से बढ़कर बड़ी दौलत है। माँ और बहनें पैसे से भी बढ़कर बड़ी दौलत। क्यों उनको ऐसे छोड़ देते हो बाजारों में टहलने के लिए? क्यों छोड़ देते हो? क्यों दयूसी भरी जिंदगी जीते हो? अल्लाह के वास्ते आंखें खोल लो, कल क़यामत के दिन वही बहने, वही माँ, वही बीवी आपकी मुखालिफत करने लगेंगी, खड़ी हो जाएंगी। बीवी कह दिया, रब ये मेरा शोहर था, दाल में नमक कम हो जाया करता था, इसके भाव और नाम सुधर जाया करते थे। ऐ रब, अगर मैं सो जाया करती थी और अगर मेरा शोहर लेट में आया करता था तो मुझे मारने लगता था, डांटने लगता था। ऐ रब, इसने कभी मुझे नहीं कहा कि पर्दे में रह, इसने कभी नहीं कहा मुझे कि पर्दे के अंदर रह। ऐ रब, ये मेरा भाई था, इसने कभी नहीं बताया। ऐ रब, ये मेरा बेटा था, ये हर काम मनवा लेता था मुझसे, इसको पर्दे के बारे में पता था, इसने कभी नहीं बताया मुझे। क्या जवाब दोगे? कभी सोचा? नहीं सोचा। जो होगा देखा जाए। फैदा खरजत इस शैतान, जब औरत घर से निकलती है तो शैतान उसके टाकों में लग जाता है और फिर मामला दामनी जैसा केस सामने आ जाता है। वो भी हमारी बहन थी, उसके साथ जो हुआ उसका तकलीफ है मुझे, लेकिन उसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं, उसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं। शैतान साथ में लगा, मामला गड़बड़ हुआ, हम और आप अपना चेहरा उठाकर चलने के लायक नहीं होते मोहल्ले। क्यों? फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही तुसीबहुम फ़ितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग अल्लाह रसूल की मुखालिफत करते हैं उनको डरते रहना चाहिए, कहीं अल्लाह का अजाब उनके ऊपर दर्दनाक अजाब ना मुसल्लत कर दिया जाए। अजाब सुनामी की शक्ल में नहीं आता है, अजाब जलजले की शक्ल में नहीं आता है, अजाब बारिश की शक्ल में नहीं आता है, अजाब अपनी परेशानियों मुश्किलात की भी शक्ल में आता है, अजाब अपनी इज्जत चली जाती है वैसे भी शक्ल में आता। कभी सोचा? नहीं। जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वअक़रबु मा तकूनु रहमत रब्बिका,
जब औरत अपने घर में रहती है तो अपने रब की रहमत के करीब हो जाती है। अल्लाह अकबर। घरों के अंदर रब की रहमत होती है। औरत, मेरी माँ और बहनों सुनो, रब का तकर्रुब हासिल होता है घरों के अंदर। आपको शर्म हया कब आएगा? आओ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक छोटा सा सीरत आपके सामने रखता हूं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि जब हमारे शोहर फौत हो गए, जब हमें अपने शोहर के हुजरे की तरफ जाना होता था तो रास्ते में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पड़ती थी, तो मैं अपने आप को खूब लपेट लिया करती थी, खूब लपेट लिया करती थी, जो कि मदफून है, दफन है, जिंदा नहीं है। और मेरी हम सब की माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, हम अपने आप को लपेट लिया करते थे, फिर वहां से गुजरा करते थे। जब अपने सरताज के हुजरे की तरफ जाते थे वहां चादर उतार लिया करते थे कि तो मेरे सरताज का कब्र, यहाँ से हमें क्या नसीहत मिलता। मेरी माँ बहनों, वो भी एक औरत थी, इतनी शर्म, इतनी हया कि अपने आप को ढांक लिया, जो कि मदफून है उमर रज़ी अल्लाह तआला। यहाँ पर तो जिंदा है हम, जिंदों के सामने हमारी माँ और बहनें बगैर दुपट्टा का अपनी इज्जत और आबरू को दिखाती, बगैर दुपट्टा का। शर्म करो मेरी माँ और बहनों, वो भी एक माँ थी, हम सब की माँ, जो चलती थी अर्श पर, जो चलती थी फर्श पर, अर्श से सलाम जिब्राइल लेकर आया करते थे। मेरी माँ और बहनों, हमारा और आपका क्या हाल है? हमारे और आपके घरों का हाल क्या है? अपनी बहन बेटी को ऐसे छोड़ दी, जहां मर्जी हो जाओ, जैसे मर्जी हो चलो, आओ जो छूट दिए हो कि मॉडर्न है, जिसके साथ चाहे छोड़ दिया अकेले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2866, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1341, 1341 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, राबी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिम्रअतिन इल्ला व मअहा ज़ू महरमिन व ला तुसाफिरु अल-मरअतु इल्ला मअहा ज़ू महरमिन। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि औरत के साथ कोई मर्द तन्हे में ना जाए, गैर मर्द, गैर महरम मर्द, औरत के साथ कोई गैर महरम मर्द तन्हा में ना जाए। हाँ, अगर महरम हो तो ठीक है, अगर महरम है साथ में तो ठीक है। यही मसला सफर का भी होगा कि सफर में भी किसी गैर महरम के साथ नहीं भेज सकते जब तक महरम ना। आज हमारा और आपका क्या हाल है? क्या हाल है? जिसके साथ पर्दा था उसके साथ भेज दिए, चले जाओ जहां जाना, छोड़ दिए। कभी गौर किया, खाले का लड़का है, फूफी का लड़का है, छोड़ दिए। फिर बाद में क्या रिजल्ट आता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, होशियार है, रिजल्ट क्या आता है हम और आप डेली अखबार में पढ़ते हैं। आओ मेरी माँ और बहनों, बदकार औरत की सिफत में आपके सामने रख दूं। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4167, 4167 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युम इम्रअतिन इस्तअतरत फमर्रत बिलकौमी लियजीदू रिहहा फलजानियतुन। जो औरत खुशबू लगाकर मोहल्ले से निकले ताकि गैर मर्द और आदमी उसके तरफ मुतवज्जा हो कि अच्छी खुशबू आ रही है, खूब सी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू है ये। अब उस खुशबू के पीछे पीछे लग गया, पीछे पीछे मटराने लगा, वो औरत इसीलिए लगा कर निकली। तो ये औरत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जानियतुन, बदकार औरत है। कितनी माँ और बहनें ऐसी हैं, और कितने हम नौजवान भाई ऐसे हैं जो अपनी बहनों के लिए फोग और एक्ट जैसा परफ्यूम लाकर देते हैं कि मेरी बहन लगा, निकल वलीमा में, निकल शादी में। बीवी को लाकर देते, वो बीवी कभी अपने शोहर के लिए इतना बने सवरेगी नहीं जितना उसको पालथी में या वलीमा की शादी वगैरह में बनते सवर कर जाना होगा, कभी नहीं बनने चाहिए। वो गरीब को कभी
गरीब को कभी मुयस्सर ही नहीं होगा तो हम भी कभी देख ले, सिर्फ उसका पैसा इस्तेमाल हो। इल्ला माशाअल्लाह कुछ नेक औरत है जो अपने आप को बचा कर रखती है, अपने आप को हिफाजत में रखती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये परफ्यूम वगैरह लगा कर निकलने ये बदकार औरत की अलामत है। और हमारा और आपका क्या हाल है? नहीं, हमारा फ्रेंड है घर में आ गया, अरे मौलवी साहब है, बड़े अच्छे आदमी, नेक आदमी, घर में आ गए। दोस्त है, बड़ा जिगरी दोस्त है, बचपन से घर में आ गए। क्यों? अब घर में आ गए, चलो एक सेपरेट कमरा तो चलो बात सही है, मर्द हैं सिर्फ कहाँ पर, लेकिन बकायदे तौर से इंट्रोडक्शन किया जाता है, शी इज माई वाइफ, ये मेरी वाइफ है, अच्छी है, खूबसूरत है। कहाँ से किया? खुला जगह, इंट्रोडक्शन किया जाता है बकायदे तौर से, गर्व महसूस करके बैठाया जाता, चाय पानी सब किया जाता है। और इसको हम सही समझते, मॉडर्न है। क्यों? जिस कल्चर में हम रहते उसी को हम अपना लेते। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुसाबियत करेगा उसी के साथ हो जाएगा। यहूद और नसारा की मुसाबियत आज हम मुसलमान करते हैं और इंट्रोडक्शन कराते बकायदा बैठा कर। अब इंट्रोडक्शन हो रहा हो, सूरह हिजाब आयत नंबर 53 अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाता है वइदा सअलतमुहुन्ना मताअन फस्अलू मिन वराइ हिजाब ज़ालिका मतहरु क़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाता है कि और जब तुम उनसे कोई चीज तलब करो तो पर्दे की आड़ में तलब करो। इससे मोमिना औरतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी और सहाबा इकराम कहा जा रहा है कि उस दौर में सबसे अव्वल मोमिन थे, उनसे कहा जब कोई चीज तलब करो तो पर्दे की आड़ में तलब करो, ये तुम्हारे लिए और उनके दिलों के लिए पाकीज़गी होगी। सहाबा इकराम तो कभी सोच सकता है कोई दिल में गंदगी होगा? बोलो, सोच सकता है कभी? आवाज क्यों नहीं आ रही? कभी सोच सकता है कि सहाबा इकराम के दिलों में गंदगी होगी? नहीं। कभी सोच सकता है कि हमारी माए उम्महातुल मोमिनीन उनके दिलों में गंदगी होगी? कभी नहीं। नहीं मौलवी साहब, दिल का मामला है, आंखों का पर्दा होता है ना? आज नहीं होता है, माँ और बहनें भी कहती आंखों का पर्दा होता है, आंख सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, आंखों का पर्दा होता है। उनके लिए एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेमन जानते हो? नींबू, लेमू हमारा है, नींबू हमारा है, चाकू नाइफ हमारा है। उस लेमन को सामने लाए, आपके सामने लाए, वे उनके लिए जो ये कहते हैं कि दिल को कंट्रोल कर लेते हैं, आंखों का पर्दा है, ये उनके लिए मिसाल है। इस मिसाल पे गौर करना। नींबू को सामने लाए आपके, और नींबू आपके सामने आएगा तो सबसे पहला जो फितरत इंसान को क्या होगा मालूम है आपको? कोई बता सकता है? जब नींबू सामने आएगा तो सबसे जो फितरत होती है इंसान को क्या होता है पता है आपको? मुंह में पानी आता है। क्यों? कंट्रोल नहीं हो रहा दिल में। नींबू हमारा है, चाकू हमारा है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? अभी तो काटे नहीं है, तो ये हाल है। और जब काट दिए तब शुरू हरकत लेना, क्यों? कंट्रोल नहीं हुआ। आंखों से कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? एक लेमन में कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो मार पहले में कैसे कंट्रोल करोगे? बोलो, कैसे कंट्रोल करोगे? मेरी माँ और बहनों, एक लेमन से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो अपने आंख और दिलों से कैसे कंट्रोल करेंगे? अल्लाह ताला मोमिनों को, सहाबा कराम को कहता जब कुछ तलब करना पर्दे क्या, हम तो बकायदा एंट्री करते हैं, बकायदा इंट्रोडक्शन कराते, होता है कि नहीं? ऐसा होता है। और पर्दे के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल की सूरह अहज़ाब। अच्छा, ये जो पहली आयत हमने आपके सामने पढ़ी थी उसका भी थोड़ा खुलासा कर दूं, वक्त की वजह से मैं जल्दी निकल रहा हूँ। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53, ये आयत का नाम जानते हैं आप लोग? ये पहली आयत थी आयतुल हिजाब के नाम से। किसके नाम से? आयतुल हिजाब के नाम से। इसका सानी नुज़ूल मैं आपके सामने रखूं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4719। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, तो क्यों ना आप अपने बीवियों को पर्दे का हुक्म दो? तब ये आयत नाज़िल होती है। अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। आज हमारे साथ भी है ना सर, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।
कभी पर्दा कराते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, जो अल्लाह का एक बंदा जिसको अल्लाह का डर होगा वो कराता, वरना कहता जो होगा देखा जाएगा। पर्दे के ताल्लुक से सूरह हिजाब की आयत नंबर 59 में जो बेहतरीन आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला यु'ज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। पहले किसे मुखातिब किया गया इस आयत में? बताइए, कुरान पढ़ते हैं ना आप लोग, पहले किसे मुखातिब किया गया? अरे बोलिए तो सही। कुरान सबके घर में है? कुरान है घरों में? देखिए इस्लाही प्रोग्राम है, हमारा और आप इस्लाह और सर्विस हो रही है, तो बताइए साथ में तो कुरान है घरों में, है ना? तो घरों में कुरान मौजूद होने के बावजूद भी आए तो पढ़े होंगे ना कभी, बोलिए। यही बात है कि हम लोग कुरान मजीद पर गौर नहीं करते हैं, वरना जिस दिन गौर करने लगेंगे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट फेल हो जाएंगे, हम लोगों से अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे जिस दिन गौर करना शुरू कर देंगे। यही वजह हम लोग गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया इस आयत के अंदर, या अय्युहन नबीय्यु, नबी को पहला हुक्म दिया जा रहा है। किसे? नबी को पहला हुक्म। तो नबी शासन सबको बताते हैं ना, तो पहला अमल खुद करिए अपने घरों से। या अय्युहन नबीय्यु कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी अपने बीवियों से कह दीजिए, फिर उसके बाद बेटियों से, फिर उसके बाद मोमिना औरतों से कहिए। कितने नंबर पे है? पहले घराने में कहा जा रहा है अपनी बीवियों को पर्दा कराइए, दूसरा नंबर बेटियों को कराइए, फिर तीसरा नंबर मोमिना औरतों से कहिए कि अपने आप जिलबाब से ढाक लिया कर। जिलबाब किसे कहते जानते हैं? पता है? बोलिए, जिलबाब किसे कहते हैं? जब नहीं मालूम तो कैसे हम लोग पर्दा करेंगे? मालूम है? नहीं, जिलबाब कहते हैं यहां से ढाक कर पूरा पंजा तक, जमीन नीचे तक चादर घसीटना चाहिए, इसको जिलबाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिलबाब। जिलबाब से ढाक ले ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे और उन्हें समझा जाए इज्जतदार घराने की औरतें हैं। अल्लाहु अकबर। अब बताओ, हम सब इज्जतदार घराने के लोग बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? बताइए, बोलिए। हम सब इज्जतदार घराने के लोग बनना चाहते हैं। हम फिर अपने औरतों को पर्दे के बारे में कहेंगे इंशाअल्लाह, और हमारी माँ और बहनें सुन रही है, अगर चाहती हैं कि लोग कहें ये इज्जतदार घराने की औरत है, तो उसकी निशानी है कि जिलबाब में निकले, पर्दे में निकले। ये पर्दे के ताल्लुक से कुछ बातें औरतों के लिए थी, अब मर्दों की तरफ आते हैं। हमारी भाइयों बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हमारे लिए कुछ नहीं, सिर्फ औरतों के लिए, हम तो बच गए। आइए, कुरान मजीद सूरह नूर आयत नंबर 30 और 31, सबसे पहला आयत मर्दों के लिए 30वां नंबर, कि ऐ मर्दों की जमात, अपनी निगाहों को नीचे रखो। किसको नीचे रखो? ये निगाह ही है बड़ा खतरनाक। निगाह है, देखा बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी स्मार्ट कैटरीना लग रही है, तो पूरी हाँ, इसका नंबर जरा निकालो यार, नंबर। हाँ, चैटिंग करना, व्हाट्सएप का नंबर लेना। अब तो कंपनियां भी जान गई है कि इन नौजवानों को कैसे बलगलाना है, कैसे दीन से दूर करना है। यूनिनार टू यूनिनार फ्री, रिलायंस टू रिलायंस फ्री, व्हाट्सएप के लिए इतना MB, फेसबुक के लिए इतना MB फ्री है। सब चैटिंग शुरू है। हाँ मैडम आपका नाम, हाँ आपका नाम, फला ढूंगा, आपकी आंखें बड़ी अच्छी, ये फला ढूंगा शुरू, रात भर चैटिंग शुरू। अब सोचिए मौलाना को कैसे पता ये सब। मैं भी दुनिया में रहता हूँ, पेपर वगैरह सब पढ़ता रहता हूँ, न्यूज भी देखता रहता हूँ, किससे तो असरात नुमाया होते हो। क्या हंसी तो आती है, लेकिन बड़ा दुख होता है। हंसी इसलिए आती कि आपकी बेवकूफी पर हंसता हूँ कि आपने खिलौना थमा दिया, जो कि अल्लाह की तरफ से तो नेमत है, लेकिन गलत इस्तेमाल कर रहे तो खिलौना है, तो रहमत है। मोबाइल से कॉन्टेक्ट नंबर, हाँ जी आपकी आंखें देखा था बड़ी अच्छी थी, हाँ तो आप कहाँ मिलेंगे, हम आप ये फला दिन का बात करते करते बात आगे बढ़ गई, रात भर बात कॉल फ्री रही, बातचीत चलती रही, नाम पता एड्रेस, बुक फला रेस्टोरेंट में काशगंज के,
मिला, मुलाकात टाइम 12:30 o'clock, 12:30 o'clock, 12:30 बजे। अब्बा कभी बुलाएंगे तो नहीं पहुंचेंगे। जो पाल पोस के इतना बड़ा किया, मेहनत के पैसे से 1-1 रुपए अपना पेट काट के आपको बड़ा कर दिया, अपना भूखा रह के आपको खिला दिया। बाप कभी बुलाएंगे बेटा 12:30 बजे दुकान आ जाना, दुकान संभाल लेना, शॉप संभाल लेना, नहीं। और गर्लफ्रेंड बुला दिए, दौड़ते हुए चलेंगे, दौड़ते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद जो होता है वो मंजर आम को नुमाया है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, जिना की तरफ बढ़ना, जिना हो जाता है। ये निगाह से कितनी खतरनाक चीज होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ी पॉइंट, बड़ी गहराई की बात यहाँ पर कह दिया, जहाँ से सारा मामला गड़बड़ होता। आंखों का पर्दा, किसका पर्दा? आंखों का। मर्दों से भी कहा और किससे कहा? औरतों से भी कहा। 31 नंबर पे मैं अरबी छोड़ रहा हूँ वक्त के लिहाज से। फिर अब आइए, ये थोड़ा पर्दे के ताल्लुक से, मर्द औरत भाई और बहनों के ताल्लुक से हमारे लिए ये बातें थी कुरान हदीस की रोशनी में। अब आते हैं जो जिससे एक माशरा तैयार होता है। माशरा कैसे तैयार होता है पता है? कोई अल्लाह का बंदा हमें बताए, मैं आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूँ, माशरा कैसे तैयार होता है? हमारे बुजुर्गों को तो पता होना चाहिए। माशरा कैसे बनता है? मियाँ और बीवी के निकाह से। किससे? मियाँ और बीवी के निकाह से एक माशरा, समाज वजूद में आता है, एक खानदान जुटता है उसको, है ना? मियाँ बीवी से खानदान जुटता है। अब इस शादी, ये शादी जो मसला है आज हमारा और आपका, इस पर क्या अमल है? क्योंकि ये बुनियाद है, इस बुनियाद से माशरा बनता है, बच्चे आते हैं। अब बुनियाद अगर सही होगी तो इमारत भी सही होगी, बुनियाद गड़बड़ होगा तो इमारत भी कच्ची होगी। फिर ठीक है ना? तो बुनियाद के बारे में आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। पहले कुरान मजीद की आयत आपके सामने रखूं, सूरह नूर की आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ फरमाता है, वअनकिहु अल-अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम मन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अल्लाह ताला कहता है कि तुम में से जो लड़के हो आपके, जो लौंडी हो, जो आप घरों में नौकर हो आपके, नौकरानी हो आपके, उनकी शादी करा दो। क्या करा दो? शादी करा दो। अगर वो फकीर होंगे, फुक़रा, अगर फकीर होंगे, युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। किससे गनी कर देगा? फजल से गनी कर देगा। इसमें क्या क्या बात हुई? पहली बात, ला निकाह इल्ला बिवली, बगैर वली का निकाह नहीं होता। यहाँ पर भी ये बात मिलती है कि किसको हुक्म दिया जा रहा है? वली को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को निकाह करा दो, बच्चों को निकाह करा दो। अगर वो फकीर होंगे, जैसे होता है ना नौजवान को बहुत निकाह करो, अरे मौलवी साहब अभी PhD कर ले, अभी MA होगा, अभी क्या कहते हैं BEd करना है, अभी ये करना, अभी वो करना, अभी पैरों पे नहीं खड़े हैं, ये सब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अल्लाह ताला क्या कहता है कि अगर फकीर होंगे तो गनी हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान नौजवान भागता है निकाह से, पैरों पे खड़े। जो अभी तक हाथों से चल रहे थे, आप पैर से ही चल रहे थे, तो जब पैर से चल रहे थे तो ये क्यों सोचा लाते कभी? ये शैतान का एक वसवसा है मेरे भाइयों। ये इसलिए आपको बलगलाता है कि आप शादी ना करें और जिना की तरफ बढ़ जाए। 100-200 रुपए में आपका काम हो जाए, 100-200 रुपए में अपनी शहवत को पूरी कर ले। शादी पाक चीज है, इसको ना करते शैतान ने ऐसा चाल चला कि आपको जिना की तरफ रग़बत दिलाई और वो जिना नौजवान आज करता है। इसलिए शादी के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि शादी कर दो। अब औरतों का मकाम बयान कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरतों से बाकायदे तौर से बैठाकर मशवरा किया जाएगा उनसे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5125 के अंदर, ला तुनकाहुल अय्यिमु हत्ता तुस्ताबरा व ला तुनकाहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताबरा, कोई बेवा का शादी उस वक्त तक ना किया जाए जब तक उससे मशवरा ना कर लिया जाए। किसी कुंवारी लड़की का शादी उस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसकी रजामंदी ना हासिल कर लिया जाए। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर बेटियों से रजामंदी लेते तो वो कैसे पता चलेगा कि राजी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की चीज बता दी। कहा कि उनकी खामोशी से नजर झुक जाना, रो देना, ये इजाजत का घंटी बजा, हिंट है, ये इजाजत है।
ठीक है, ये शरीयत है। बकायदे तौर पर मेरी माँ और बहनों आपका मकाम देखो, मशवरा दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, बेटी आपका निकाह फला लड़के के साथ जो PhD किया है, आलिम है, अच्छा लड़का है, फला खानदान से है, तो मैं निकाह कर रहा हूँ। बेटी को अच्छा लगेगा तो शर्मा जाएगी, रोएगी, नहीं अच्छा लगेगा तो मना कर देगी सीधा। और अगर दीनदार परवरिश दिए और दीनदार घराने में बच्चियों को, तो कभी आलिम रिश्ते को यानी दीनदार रिश्ते को नहीं मना करेगी। अगर तालीम अच्छी दी हो, तरबियत अच्छी दी हो। लेकिन आज हमारा और आपका क्या हाल है, और सुन्नत का निकाह बताओ और फिर आज की दुनिया का निकाह मैं आपके सामने रखूं। सुन्नत वाली निकाह कैसी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है किताबुल निकाह के अंदर, ला तुनकाहुल अमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 चीजों के बिना पर निकाह किया जाता है, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिजाती दीन तरीबत यदा। किस बिना पर? 4 चीजों बिना पर। इससे जरा बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, यही माशरा बुनियाद में आता है। अगर इस बात को समझ में आ गई, इंशाअल्लाह हमारी माशरा की इस्लाह हो जाएगी, हमारी भी इस्लाह हो जाएगी इंशाअल्लाह। लिमालिहा उसके माल की वजह से, वली हसब या हसब और नसब, वली जमाल या खूबसूरती की वजह से, वली दीन या दीनदारी की वजह से। बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम दीनदारी को तौक़ीयत दो, फज़फर बिज़ाती दीन तरीबत यदा, तुम्हारी हाथ खाक आलूद हो, हाथ मिट्टी में सन जाए अगर तुम दीनदारी को तौक़ीयत नहीं देते। आज बताओ, आमीन 11 रकात तरावी, हमसे ज्यादा इल्म वाला कोई होगा, हमसे मुबाहिला, हमसे डिबेट, हमसे मनाजरा कर लो, इस मसले के मनाजरा, आमीन के मसले से, तरावी के मसले से, फिर इसके बाद सूरह फातिहा के मसले से, हर मसले से मनाजरा, हर मसले से बहस मुबाहसा। लेकिन जब शादी का मसला आता है तो सारे मसलक वाले कहते हैं एक काम सिर्फ हमको आता है, शरीयत उठाओ, ताकों में रखो, ताला लगाओ, अपने मन के बादशाह हैं हम, अपने मन के बादशाह है, शादी करेंगे मालदार चाहिए होंगे, अपने बिरादरी का होने चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए, दीनदार होगा तो चलेगा। यहाँ पे ज्यादा तरजीह नहीं है, 3 चीज पे तरजीह ज्यादा है, 3 चीज पे। मालदार, हसब नसब, खूबसूरत होनी चाहिए। अब्बा मालदार के साथ साथ देख लीजिएगा थोड़ा खूबसूरत है कि नहीं, दीनदार होगा चलेगा। आज नौजवानों बताओ यही सोच है, इल्ला माशाअल्लाह कोई नेक अल्लाह का बंदा होगा, उसकी सोच होगी कि हमारी बीवी जो हो दीनदार हो, वरना अक्सर नौजवानों की सोच होगी कि मालदार के साथ साथ खूबसूरत भी होना चाहिए। और ये तो खानदान का बंटवारा तो हमारे बुजुर्गों ने कर रखा है, नहीं सिद्दीक की लड़की सिद्दीक में जाएगी, खान की लड़की खान में जाएगी, पठान की लड़की पठान में जाएगी। मैं चैलेंज करता हूँ आपके गंजद्वारा के अंदर, मेरा मोबाइल नंबर मुनव्वर भाई के पास है, मैं जो बात कहता हूँ जंगे की सोच पर कहता हूँ और हक बात बोलने का आदी हूँ मैं, और अल्लाह के अलावा किसी से डरने का मुझे कोई खौफ नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, पूरे जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। अगर बात गलत है आप मेरी इस्लाह करो। मैंने पहले बोल दिया था सूरज बाद में निकलेगा, तौबा पहले करूंगा। एक सही क्या ज़ईफ हदीस लाओ, सही क्या ज़ईफ हदीस लाओ जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल से तहरीर कोई भी हदीस से साबित हो कि खानदान से तरजीह दिया जाएगा, कोई भी हदीस है। किसी भी मतलब का हो, मैं भेदभाव नहीं रखता, मैं सबको जोड़ने वाला सबको, किसी भी मतलब का हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ने के लिए पैरों पे पत्थर खाए, सरों पर पत्थर खाए। मेरा नबी लहू लुहान हुआ सिर्फ इस वजह से कि लोगों एक हो जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो। मैं वो जोड़ने वाला इंसान हूं, तो इसलिए पूछता हूँ सही क्या हदीस, ज़ईफ हदीस लाओ। खानदान का बंटवारा करने वालों मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस खानदान की वजह से आपको पता नहीं होगा क्या क्या मामला पूरे दुनिया के अंदर। सैयद है तो अपने आप को आला समझता है, नहीं अंसारी हमें सलाम करेगा, हमारा मकाम इतना ऊंचा है, नहीं।
घमंड चूर चूर कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअराफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ताला कहता है हमने एक मर्द औरत से तमाम मर्द औरत को पैदा किया, उनको कुम्भों कबीलों में तकसीम कर दिया, तुमने से बेहतर वो है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो। अब एक अंसारी भी होगा तकवा वाला तो सबसे बेहतर है वो। ये जात बिरादरी पूछ छाछ ये सब भेदभाव इस्लाम के अंदर नहीं है मुसलमानों, नहीं है ये सब। इससे ज्यादा तकलीफ ना करते हुए एक बात यहाँ पर और नोटिस कर दूं, ये जो जात बिरादरी है सिर्फ पहचान के लिए। गंजद्वारा में मैं परदेसी हूँ, आओ कहूँ मुझे अब्दुल्ला के घर जाना है, आप कहेंगे अब्दुल्ला यहाँ 3 है, पठान खान सैयद, किसके घर सैयद 22 बिल्डिंग, सीधा एकदम फ्रंट पे है, चले जाइए। ये निशानदेही के लिए होता है, जात बिरादरी निशानदेही के लिए होता है, ये ताअस्सुब व घमंड के लिए नहीं होता है कि हम अपनी बेटी की शादी सिर्फ अपने घराने अपने खानदान में करेंगे। नहीं, दीनदार रिश्ता आया फौरन तस्लीम कर लेना। क्या कर लेना है? तस्लीम कर लेना, नहीं करोगे तो फितना होगा। और उसके बाद का क्या मामला है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्नद अहमद की हदीस है गालिबन, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं शादी आसान कर दो, शादी आसान कर दो। आज बताओ मुसलमानों, ये नबी की बात है, हमारी बात नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात है लेकिन बड़ी वजनदार बात है। शादी को आसान कर दो। आसान है? 1.5 लाख होगा तो अपनी बेटी का निकाह कराऊंगा, 2 लाख होगा तो अपने बेटे का निकाह कराऊंगा, ये आसान है? नहीं। और आसान किसे कहते हैं? बुखारी शरीफ के हदीस है, एक औरत आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहती या रसूलल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, फिर कहते आपसे निकाह करना, खामोश थे, फिर कहते आपसे निकाह करना, खामोश थे। सहाबा कराम बगल में बैठे हुए थे और लोग कहे या रसूलुल्लाह अगर आपकी हाजत नहीं है तो मुझसे कहो। अल्लाहु अकबर, इतना आसान, सोचना भी नहीं कि डर है कि हम खड़े हैं कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं। सहाबा इतना छूट दिए थे रसूलुल्लाह, सहाबा कहते आपको हाजत नहीं तो मुझसे करवा दीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हाल का सही है, हमारे पास कोई चीज है महर में देने के लिए? कोई चीज है? मांगे नहीं है, नहीं है कोई भी चीज। जाओ सब करके आओ घर के अंदर, खान कराओ, एक कराओ, कुछ गए 2 बार लौटा नहीं है, एक अंगूठी भी मिल जाए और नहीं है, पहले क्या होगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजार है, चादर है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ और बहनों नौजवानों इस हदीस पर गौर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, है मेरे साथी, अगर इस चादर का 2 टुकड़ा करता हूँ, एक आधा टुकड़ा तू रखेगा, एक आधा टुकड़ा इसे देगा, तो दोनों के काम का नहीं है, दोनों के काम नहीं आएगा। मायूस हो गया कि अब मेरे पास कुछ नहीं, अब चला जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं कि इधर आओ, अगर तेरा रास्ता मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत मुबारका में नहीं निकला तो कौन सी शरीयत निकाल सकती है? कौन सी शरीयत निकाल सकती है? कहा आपको कुरान याद है? कहा या रसूलुल्लाह मुझे याद है, फला फला सूरत के नाम गिनाए, सूरह मुनाफिकून, सूरह हाफा, इसी से 8-10 सूरतों का नाम गिनाया। तो उस औरत से पूछते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत अगर इस सूरह को तेरे लिए महर बना दूं मैं, बुखारी की रिवायत, अगर इस सूरह को तेरे लिए महर बना दूं मैं तो क्या क्या कबूल करती है? तो वो औरत खड़ी होकर चीख कर कहती, मेरी माँ बहनों सुनो, किस्सा कहानी नहीं है ये, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरे जिंदगी में कुरान मजीद की सूरह मेरे लिए महर बन जाती है, इससे बाबरकत निकाह कौन हो सकता है? ये खुशनसीबी मुझे मिली है। अल्लाहु अकबर। वो महर बना दिए सूरह को, इतना आसान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, एक रिवायत के हिसाब से 9, दूसरी रिवायत के हिसाब से 11, 9 शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। 9 ही शादी समझ लो, 9 शादियां। एक शादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दहेज लिया या दिया? सही और गई हदीस के अंदर ला कर दिखलाओ,
सही सही हदीस से एक निकाह दी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकाह कर लिए है, रसूलुल्लाह की सलाह नहीं है। सुबह रसूलुल्लाह देखते हैं अब्दुर्रहमान के कपड़े पर दर्द रंग लगे हैं, उससे पता चल गया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ निकाह कर लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुर्रहमान क्या आपने निकाह कर लिया? कहा हाँ अल्लाह के नबी, हमने सोने की अंगूठी के महर के बिना पर निकाह कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुर्रहमान वलीमा कराओ, वह एक बकरी हो। ये सुन लिया हम लोगों ने, हाँ हाँ बहुत अच्छी हदीस है ना, यही होता हम लोग के साथ, बहुत अच्छी हदीस है। लेकिन हमारा और आपका मामला क्या है? यहाँ पर देखो क्या इबरत मिली कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह कर लिया, रसूलुल्लाह की सलाह नहीं है इसके बारे में। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अजीम शख्सियत हो सकती है जमीन पर? बोलो, नहीं हो सकती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पूछा, हम और आप अगर बेटी का या बेटे का निकाह कराते हैं तो सोचते हैं 10 बार, फला रिश्तेदार को कांटेक्ट करना है, फला को कांटेक्ट करना है, सब आ जाएंगे। मेरी माँ बहनों, कभी आपको दस्त के लिए बुलाया जाए, आओ ख्वातीन का इज्तिमा है, कुरान सुनाया जाएगा, हदीस सुनाया जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह 4 या 8 या 10 गिनती से मिलेंगी उस इज्तिमा के अंदर। लेकिन जिस टाइम निकाह होता है, रज्जता है और ढोल पीटा जाएगा, वो औरतों की पंचन निकलती है, वो सच धक्कन निकलती है और उस बैठ जाती है बैंड बाजा रज्जता में। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, क्या इस्लाम का खिलवाड़ बना कर रखा है? नौजवानों, क्या तुमने इस्लाम का खिलवाड़ बना कर रखा है? अल्लाह ताला तो कहता है, वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस। लोगों, तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो लहवल हदीस खरीदते हैं। और लहवल हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना होता है। मेरी माँ और बहनों, गाना बजाना खरीद कर बकायदे तौर से जितमाही शक्ल बनाई जाती है, ढोल पीटा जाता है। ये हमारे भाई बहन और हमारे बड़े देखते हैं घरों के अंदर कि हाँ औरतें बैठी है, रज्जता हो रहा है, गाना हो रहा है, बैंड बाजा हो रहा है बकायदे तौर से। हमारी सब और हया कहाँ चली गई? हमारी सब और गैरत कहाँ चली गई? नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, ये इस्लाम नहीं है जो आप करती हो। उसके बाद मॉर्निंग होता है, सुबह होता है तो दूल्हा को बकायदे तौर से नहलाया धुलाया जाएगा जैसे साल भर से नहाया ना हो, हल्दी से बकायदे तौर से, फिर सेहरा वगैरह बांध के फिर वो डीजे पार्टी के साथ गाया जाता है। ओ मेरे भाइयों, जरा मुझे बताओ, ये शरीयत मुबारका है? बताओ, ये शरीयत है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है? बताओ मेरे भाइयों, कोई एक अल्लाह का बंदा बताओ। नहीं, हमारे नबी ने ये तालीम नहीं दी, यहूद नसारा का तालीम। ये गैर मुस्लिमों का रस्म रिवाज हमारे अंदर आ गया है। कभी सोचा नहीं, हमारी हरकत की वजह से हमारा बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमारा बेटा पल्सर के बिना नहीं चलता है, हमारा बेटा हंस के बिना नहीं चलता है, हमारा बेटा एसी के बगैर नींद नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा गद्दे पे सोता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इनडायरेक्टली के साथ बकायदे तौर पे गरीब साहब से सवाल किया जाता है, एक किसान से सवाल किया जाता है। वो किसान बेचारा दिन दिन भर पसीने को न देगा, न धूप देगा, न छाव देगा, अपने बेटी के शादी के लिए, जमात को खरीदने के लिए कितने रुपए को इकट्ठा करता है। नौजवानों, हमारी तो गैरत ये थी कि हम जाते सिर्फ और सिर्फ लड़की को लेकर आते, लेकिन हमारी गैरत कहाँ चली गई? नौजवानों, हम इंटरनेशनल भिखारी बन गए, हम इंटरनेशनल भिखारी बन गए। एक भिखारी तो आकर कहता है अल्लाह के नाम पर 1 रुपए दे दो, हम भिखारी कहते हैं बेटी के नाम पर पल्सर दे दो, बेटी के नाम पर हंस दे दो, बेटी के नाम पर एसी दे दो, बेटी के नाम पर डल्लक दे दो। ओ मेरे साथियों, हम तो नौजवान थे, हम तो मर्द थे, हम तो कमाने वाले थे, ये कैसे भिखारी बन गए? कभी सोचा नहीं? इस जहेज की वजह से आओ, आपको मैं कैसे कैसे वाकया बताऊं। इस जहेज की वजह से पटना की सरजमी थी, शायद किसी को याद होगा, पटना की सरजमी में एक घर से 14 लाशें निकली थी, पटना कांप रही थी। सिर्फ क्यों? ये हमारे और आप का जो ये रस्म है जहेज,
इसकी वजह से उसकी बेटी किसी और के साथ जाकर हमल ठहरा कर आ जाती, फिर ये शादी कैसे करे, कैसे करे। और गैरत, बाप की गैरत जागी, जहर खरीद कर लाया, संडे का दिन था, फैमिली से कहा साथ में खाना खाएंगे, चुपके से जहर मिला दिया खाने। बच्चे भी थे, बेटी भी थी, खुद भी था, उसकी बीवी भी थे। किस अल्फाज नहीं निकलते हैं, कांप जाता हो। ये मत सोचो कोई और था, वो भी हमारा भाई था, वो भी हमारी बेटी थी। ये रस्म और रिवाज की वजह से वो बेचारा जहर अपने बच्चों को खिलाया। 14 लाख पैसे उठाए होंगे के खानदान वाले, उस मासूम बेटी को कैसे दफन किए होंगे। कभी सोचा नौजवानों? नहीं, जो होगा देखा जाए। क्या देखोगे नौजवानों, क्या देखोगे? अब क्या देखोगे? आए दिन जलजले आ रहे हैं, आए दिन रह रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मौजूदगी का हिंट दे रहा है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। लेकिन नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नौजवानों, कभी गौर किया जलजले आते क्यों है? इस बात का लब्बो लिबाब बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आजकल जलजले और तूफान बहुत आम हो गए हैं, बहुत आम हो गए हैं। हमेशा हम दुनिया की किसी कोने, किसी इलाके में खबरें सुनते चले आए, फला जगह जलजला आया, फला जगह तूफान आया। हैती के अंदर 12 जनवरी 2010 में आने वाले जलजले में जानते कितने मरे थे? 2,23,000 अपराध हलाक हुए थे। 2,23,000 अपराध हलाक हुए थे। चिली में 27 फरवरी 2010 में आने वाले जलजले में 708 अपराध हलाक हो गए। इंडोनेशिया के सरजमी में 26 दिसंबर 2004 में 2 जलजले आए, उससे पैदा होने वाली सुनामी में 2.5 लाख अपराध लुकमा अजल बन गए। और इसी तरीके से पाकिस्तान और कश्मीर में भी जबरदस्त सैलाब और तूफान आया, जिससे बेशुमार लोगों की जान गई। बताने का मकसद क्या? ये जलजले क्यों आते हैं? कभी गौर किया नौजवानों? नहीं, फला न्यूज पढ़ लिए 2 लाख मर गए, बस उसी का इनका थोड़ा सा दर्द हुआ, उसके बाद भूल गए। नहीं नौजवानों, ये जलजले हमारे करतूतों की वजह से आते। रब को नाखुश कर रहे हैं हम लोग, रब की नाराजगी को मोल रहे हैं। आए दिन नमाज से दूर हो रहा है नौजवान, आए दिन इस्लाम से दूर हो रहा है नौजवान, आए दिन माँ और बहनें पर्दे से दूर हो रही है, आए दिन बच्चियों का कत्ल किया जा रहा है, आए दिन गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है। अरे इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा? गरीब के ऊपर जहेज को लाद दिया गया कि जहेज दोगे तब ले जाएंगे। आए दिन ये खुराफात, ये सिर्फ बिदात आम होते हैं। तो जलजले नहीं आएंगे तो क्या आएंगे मेरे दोस्तों? कभी गौर किया इसके बारे में? नहीं। आइए, आज के सामने एक किताब अल-अक़ूबात इमाम इब्न अबी दुनिया ने बहुत अच्छा हदीस नकल किया है। अल-अक़ूबात के सफा नंबर 29 के अंदर कहते हैं कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं और मेरे साथी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचे और कहा, ऐ माँ, जलजले और इसकी हकीकत को बयान करे, ये जलजले क्यों आते हैं? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब दुनिया वाले जिना को हलाल समझ लेंगे, शराब कसरत से पी जाएगी, शराब का नाम चेंज कर दिया जाएगा। आज नौजवान से कहा जाता है, शराब पीकर अपने आप को हलाल क्यों करते हो? कहता है, मौलवी साहब, ये शराब नहीं, ये बियर है, शराब नहीं किंगफिशर है, शराब नहीं बखारी है, शराब नहीं वट्टा है, शराब नहीं लेना है, शराब नहीं पुल्ला है। बताओ नौजवानों, तुमने शराब का नाम बदला ना। ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करके शराब को आम किया जाएगा, शराब का नाम बदल दिया जाएगा और गाने बजाने आम हो जाएंगे।
जाएंगे। आज मोबाइलों पर MP3 जितनी कसरत के साथ बजता है, काश कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत कानों में गूंज थी नौजवानों के। नहीं, ये MP3 गाने में मगन हो गया नौजवान। पूछा जाता है ये टी-शर्ट कहाँ से लिया? कहता है कि सलमान खान का फैन हूँ, उसकी तरफ से मैंने ये लिया। माँ और बहनों को समझाया जाता है, कहती है मैं कैटरीना की तरह हूँ। ओ नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, शर्म करो, शर्म करो। हमें तो ऐसा होना चाहिए था कि जब हम जमीन पर चले, मोहल्ले वाले देख कर कहे कि अगर किसी को देखना है तो देखो ये मोहम्मद ही जा रहा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला जा रहा है। वो मेरी माँ और बहनों, कभी और निकलो घर से बाहर तो देखने वाले कहें देखो ये फला घर की इज्जतदार औरत जा रही है, अम्मा आयशा के नक्शे कदम पर जा रही है। कभी सोचा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देख लोगे? जब मर जाओगे, जब दफन कर दिए जाओगे, फरिश्ते आ जाएंगे सवाल जवाब के लिए, देख लोगे? क्या देखोगे नौजवानों? जलजला आएगा, छत गिर ना जाए, अल्लाह ना करे, क्या देख लोगे नौजवानों? कहता है नौजवान देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे? जब जन्नत और जहन्नम का फैसला किया जाएगा, देख लोगे? अरे कभी तसव्वुर किया? सपोज करो, देख करो, जो हमारे सामने जहन्नम ऐसे रखी जाए, उसके सामने कोई सिरात रखी जाए, तलवार से ज्यादा तेज हो, बाल से ज्यादा बारीक हो, उसके सामने से हमारा भाई उसके ऊपर से चल कर जाए, कट कट कर जहन्नम में गिरे। नौजवान कहता है देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे नौजवानों? हमारा भाई, हमारा बेटा, जिसे कभी नमाज के बारे में नहीं बोला, जिसे कभी हमने दाढ़ी के बारे में बोला, जिसे कभी हमने पर्दे के बारे में नहीं बोला, हमारे सामने हमारी बेटी, हमारा बेटा वो पुल पे हाथ पे कट कट कर जहन्नम में गिरेगा। अरे क्या देखोगे नौजवानों? जब भूख लगेगी, रब से खाना मांगोगे, फरिश्ते खाने में काटा ला कर देंगे, पानी मांगोगे, मवाद देंगे, पीप देंगे, खून देंगे। नौजवान से पैसे आ जाएगा। अरे कैसे देख लोगे? जब जिस्म में खुंजी को नहीं देख पाते हो, सहारने लगते हो, बाप की नींद हराम हो जाती है, माँ सो नहीं पाती, हमारे लाल को खुंजी हो गया है, हमारे लाल को ओला हो गया है। बताओ मेरी माँ और बाप अपने बेटे को जहन्नम में जाते कैसे देख लोगे? नौजवान कहता है देखा जाएगा। अरे क्या देखोगे? जब रब से कहोगे वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। जब मुजरिमीन रब के सामने खड़े होंगे, ये दहेज के लेने देने वाले, ये रस्म रिवाज करने वाले, ये दाढ़ी मुंडवाने वाले, ये बगैर पर्दा वालियाँ, ये सिर्फ बिदअत करने वाले रब के सामने खड़े होंगे, कहेंगे रब्बना, ऐ रब अबसरना, हमने देख लिया, समिअना सुन लिया, जान लिया, ऐ रब एक दफा गंज दुआरे के सरजमी पे भेज दे, ऐ रब तेरी खूब हम शुक्रगुजारी करेंगे, ऐ रब तहज्जुद गुजार बन जाएंगे, ऐ रब 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, ऐ रब दाढ़ी रख लेंगे, ऐ रब अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, ऐ रब दहेज ना लेंगे ना देंगे, ऐ रब एक दफा भेज दे, ऐ अल्लाह एक दफा गंज दुआरे के सरजमी पर भेज दे। रब से कहेगा वो बंदा इन्ना मूक़िनून, अब मुझे यकीन हो गया। दुनिया में नहीं यकीन होता है ना नौजवानों, कहता है जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम कहेगा नौजवान ऐ रब मुझे यकीन हो गया। अब्दुल्ला मोहम्मदी जो आकर कहते गए थे कुरान हदीस के हवाले से, वो सही था, मैं सिर्फ उसको सुनकर एक कान से निकाल दिया था, लेकिन रब वो बात सही थी। याद रखो अब्दुल्ला मोहम्मदी की इस्लाम में वैल्यू 0 है, 0 भी 1% होता है, उससे भी कम मेरी वैल्यू है। मेरी
कोई हैसियत नहीं है। मैं रब का कलाम सुना रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहा हूँ। ऐ नौजवानों, ये प्रोग्राम से दस लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से अपने चेहरों पर दाढ़ियां बनाएंगे इंशाअल्लाह। बताओ नौजवानों, बताओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद से अपने चेहरों पे दाढ़ी बनाएंगे। आवाज तो निकालो, अल्लाह के बंदो आवाज से निकालो कि इंशाअल्लाह। बोलो तो सही, रब के हाजिरी तो दे दो। लब्बैक, हाजिर हो रब, आपकी इताअत और फरमाबरदारी करने के लिए हाजिर हो रब। ऐ मुसलमानों, गैरत जगाओ, कहो इंशाअल्लाह अपने चेहरे पे दाढ़ी को बढ़ाऊंगा। आवाज नहीं निकलती। रब से मोहब्बत नहीं है क्या? बोलो, रब से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, नबी के लिए जान देने के लिए सब तैयार हैं। अरे एक दाढ़ी नहीं रख सकते हो तो जान क्या दोगे? नहीं मौलवी साहब, दाढ़ी रख लेंगे तो लड़की पसंद नहीं करेगी। यही शिकायत है नौजवानों। वो लड़की आपकी जिंदगी के लायक नहीं है। जो रसूलुल्लाह की दाढ़ी से नफरत करे वो आपके कैसे हो सकती है? बोलो, आपके बनकर रहेगी वो? जो नबी के दाढ़ी से नफरत करे वो आपको बनकर रहेगी? बोलो तो बताओ। इंशाअल्लाह वादा कर लो, रब के सामने हाथ तो उठा दो, दिल में नियत तो कर लो कि इंशाअल्लाह बोल तो दो। अरे दर्श लेकर जा रहे हो, आए हो यहाँ पर दर्श लेने, तो बताओ इंशाअल्लाह। शर्म आ रही है। मौलवी साहब जोर दे रहे हो। अरे यहाँ पे जोर दे रहे हैं, कयामत के दिन मेरा बस नहीं चलेगा ना। कयामत के दिन किसी का बस नहीं होगा। एक छोटा भाई बड़े भाई को जोर दे सकता है कि मेरा भाई कहीं गलती न गिर जाए। बड़ा भाई छोटे भाई को समझा सकता है कि मेरा भाई गलत काम ना कर ले। जोर देते हो कि नहीं देते हो अपने बेटे भाइयों को? बोलो बोलो, देते हो ना? तो इंशाअल्लाह गूंज दो, इस मैदान को गूंज दो कि इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। चलो, अल्लाह के कुछ बंदे हैं इस जमीन पर, अल्लाह के मानने वाले आज तक हैं इस जमीन पर, इनका शुक्र अदा करो। जब तक कलमा गो होंगे शुरू है जमीन पर, उस पर अमल करने वाले होंगे, इंशाअल्लाह कयामत नहीं आएगी। इनका शुक्रिया अदा करो। यहाँ से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह अपने बेटी और बेटी के शादी में दहेज ना लेंगे ना देंगे। अब मोहब्बत रसूल खत्म हो गई, अब खत्म हो गई मोहब्बत रसूल। वादा कर लीजिए, हर कोई के पास अल्लाह बेटी देता है। अल्लाह ना करे कोई के पास ऐसा दिन आ जाए कि बेटी बैठी रह जाए घर में। ये माहौल बनाओ, अल्लाह के वास्ते माहौल बनाओ। हमारे पास भी बेटी आ सकती, माहौल बनाओ। कह सकते हो मौलवी साहब आपने किया कि नहीं किया? लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून। वो बात मैं नहीं कहता जो मैं खुद नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बगैर दहेज का निकाह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट बीवी है हमारी, और शहाबुद्दीन मदनी के अदारा में पढ़ाई हुई तो टीचर रह चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी मुअल्लिमा मुबल्लिगा है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर फख्र नहीं करता हूँ, लेकिन बताने का मकसद है कि इस्लाह हो कि मैंने ये काम किया है। और तो और कभी लड़की वालों के ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहिए कि नहीं 150 आएंगे 200 आएंगे, खाने तैयार रखना। ये डाकू हैं, डाकू की तरह जाएंगे और चोर की तरह भागेंगे। खा पी के निकलेंगे बगादा प्लेट साफ करके। लड़की के ऊपर बोझ नहीं भाई। वो लड़की वालों ने दावत दिया था, लड़की के बाप ने लड़के के बाप को कहा था कि 150 आदमी आ जाए। मजबूरी की इजाजत समझते हो? उसकी मजबूरी की इजाजत है, वो मजबूरी है, बाद में बेचारा पछताता है। इंशाअल्लाह तौबा करो कि लड़की की शादी इंशाअल्लाह बगैर दहेज के लेन देन से करेंगे और लड़की के घर में डाकू बनकर नहीं जाएंगे खाने के लिए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह लड़की की शादी बगैर दहेज के। और एक दूसरे को सब कुछ देख लो, और अगर कैमरा में मौजूद है तो जरा घुमा दीजिए कि कौन कौन बोल रहा था, वो भी कैप्चर हो जाए। दुनिया के भी सबूत में रहे और आखिरत के भी सबूत में है। इंशाअल्लाह दहेज ना लेंगे ना देंगे। हाथ उठा दीजिए अल्लाह के वास्ते।
अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुनव्वर भाई और हमारे शेख अब्दुल वाहिद अस्सलफी हफिजुल्लाह साहब, आपका अल्हम्दुलिल्लाह जलसा इतना तो कामयाब हो गया और इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा भी और कामयाब होगा इंशाअल्लाह। और इसी बात पर हाथ और उठाओ कि नौजवानों दाढ़ी भी रखेंगे, जो छठी और छोटी है वो भी बड़ी करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक बार का जरूर बुरा लगेगा लेकिन मैदान महशर में बच जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे और आप सभी को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। और हमारी माँ और बहनों, अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आप वहाँ से वादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी बेटियों को और खुद भी मुकम्मल पर्दे में रहेंगे इंशाअल्लाह, पर्दे में रहेंगे कम से कम इंशाअल्लाह, पर्दे में बोल सकती हैं, रब सुन रहा है, रब देख रहा है। और ऐसा बनकर रहो कि कल की सुबह ऐसी हो कि नौजवान कहे हमारा गंज गुरुद्वारा सुधर गया, हमारा गंज गुरुद्वारा की इस्लाह हो गई, कि हमारा ये समझ पूरी सुधर गया, हमारी माँ और बहनें पर्दे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और हम सभी की टूटी फूटी जो भी इबादत है उसको कबूल फरमाए। जो मकरूज है उनके कर्ज को अदा करे, जो बेटियां रह गई हैं शादी के लायक, अल्लाह ताला उनको नेक सालेह रिश्ता मुहैया कर दे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, दज्जाल के फितने से बचाए, शैतान के वसवसे से बचाए, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मुयस्सर करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए शायद शेख अभी तशरीफ नहीं लाए हैं जिसके आप लोग मुंतजिर हैं। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल हमीद साहब अभी यहाँ पे जलवा अफरोज नहीं हुए हैं, अभी उनका भी बयान सुनिएगा, माशाल्लाह बहुत जाने बयान देता है। मैं उनसे मुलाकात कर चुका हूँ, इंदौर में मेरा प्रोग्राम खिताब भी हो चुका है, जानते भी हैं मुझे। और यहाँ जो ये मकसद है, मैं मकसद के ऊपर आता हूँ क्योंकि तकरीर तो खत्म हो गई दुआ के साथ। मकसद जो है जलसे का, ये मकसद है इस्लाह की, हमारी खुद की और उलमा जो बैठे हैं यहाँ पर, ये उनकी भी इस्लाह है और अवामुन नास की भी इस्लाह है। ये मत सोचिए खाली आप लोग के लिए, ये हमारी भी इस्लाह है और आप लोगों के लिए इस्लाह है, ठीक है ना। तो इसमें बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। एक अच्छा बाय सपोज करिए दुनिया में एक बार बुरा मान जाएंगे तो ठीक है, मैदान महशर में कैसे बचोगे? सोचा कभी, गौर फिक्र किया कि मैदान महशर में कैसे बचोगे? इसके ऊपर भी कभी सोचो। और मैं एक रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ और ये नूरानी चेहरा उलमाए कराम से कि आप लोग भी वादा करें कि ऐसे निकाह में काजी बनकर नहीं जाएंगे जिसमें जहेज का लेना देना होता हो, जिसमें रस्म और रिवाज किया जाए। इंशाअल्लाह हमारे उलमाए कराम भी उसमें शामिल नहीं होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें शामिल होते। तो इसके ऊपर भी और एक अहम ऐलान भी मैं आपके सामने कर दूं कि मैं रहने वाला मिर्जापुर का हूँ और कई मकामात के प्रोग्राम के सिलसिले से जाना होता रहता है। और हमारा सेंटर है इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर, जो रजिस्टर्ड संस्था है जिसके मार्फत से बहुत सारे काम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम मैरिज ब्यूरो चलाते हैं जिसमें बगैर जहेज रस्म रिवाज और लड़की के घर खाना खाए बगैर शादी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी करवाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी रजिस्टर ये संस्था है हमारी, इसके तहत काम हो रहा है और शादी का सिलसिला भी चालू है। दूसरा है जादू टोने का इलाज, शरई इलाज, इसका तो शरई इलाज, तो इसका भी इलाज कराया जाता है। तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मोहम्मदिया के नाम से एक अदारा भी चलाया जाता है जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चे और बड़े और बूढ़े भी तालीम लेते हैं। बच्चे बड़े और बूढ़े भी हिंदी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश वगैरह की तालीम हासिल कर रहे हैं और ये 14 साल का सिलसिला शुरू हो रहा है। और अभी हाल में निस्वा का भी
इंतजाम अलहदा किया गया है, उसमें हमारी अहलिया टीचर है, पढ़ा रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उन बच्चियों जो 4, 8 साल 9 साल की तकरीर सुनेंगे तो कहें कि उनकी हौसला अफजाई से भी करेंगे और रब की तारीफ भी बयान करेंगे कि रब ने देखिए छोटे छोटे बच्चियों को कैसे सलाहियत दिया है, क्योंकि जब हम उन्हें उसी रास्ते पे चलाएंगे तो वही चीज अपने ऊपर लागू भी करेंगे कि हाँ हमें इस रास्ते में हमारे माँ बाप भी हैं तो हमको भी असर है। और देखिए माँ बाप का असर बच्चों पे जाता है। आज हम लोग गौर फिक्र नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, बच्चा अगर है तालिब, इधर आओ सिगरेट चलाना है, कैप्टन गोल्डस्लेट फला की दुकान पर ले आओ, फिर इसी तरीके से गांजा लाना है, फला की दुकान से ले आओ, उस बच्चे को रास्ता दिखाते हो। फिर वही बच्चा जब कल बड़ा होगा, आपके सामने गोल्डस्लेट, आपके सामने कैप्टन, आपके सामने दारू पीता है, तो कैसे बच्चा बिगड़ गया? रास्ता आपने दिखाया ना, उसको दिखाया कि नहीं दिखाया? तो ऐसे बच्चों को इस तरीके से भी, और खुद उससे बचे जो आज माशरा में ये बहुत आम हो गया है, उलमा भी हो चाहे वो आवाम हो, हर कोई को हमने देखा, आंखों में देखा है, कानों में सुना है, बकायदा सिगरेट पीते हैं, मस्जिद में बैठ कर खैनी खाते देखा हमने, पूछा गया कहीं मकरूह है, हमने कहा आज तक हमने ये नहीं पढ़ाया गया कि ये रोटी और खैनी मकरूह है, ये आपने अपने खाने के लिए मकरूह कर लिया क्या? अपने खाने के लिए मकरूह कर लिया मस्जिद में गए, और जब पूछा रहता कि बीड़ी पी, अरे बगैर बीड़ी पिए हमारा हाजमा तो नहीं होता, लेट्रिन ही नहीं उतरती है, ये बहाना शैतान वैसा करता है। सहाबा कराम को हम सब गुन गाते हैं, बोलो गाते हैं, चौराहे चौराहे पे गुन गाते हैं, कहते हैं ना कि ये सहाबा को नहीं मानते हम मानते, कहते हैं कि नहीं कहते? हर कोई कहते हैं। सहाबा का अमल जानते हो, दारू खूब पीते थे, खूब और तगड़ा दारू पीते थे, खूब तगड़ा, और फिर सही सलामत खड़े रहते थे, पहचानते थे। आज तो 100 ग्राम पी लिए, नाली में पड़ा है, कहेगा कि हम सीएम है, डीएम है, 100 ग्राम पीने के बाद सीएम बन जाता है, वो नाली में पड़ा, होश नहीं होता। वो ऐसा पीके जब खड़े रहते थे, लेकिन जब हराम की आयत आई, उंगलियां डाल डालकर तय कर दिया, मेहरे जारी हो गई। आज है ऐसा, छुट्टे नहीं है, और कैसे साहबा को मानते कि छुटता नहीं है, छुट्टे नहीं है पीना, बीड़ी छुट्टे नहीं, सिगरेट छुट्टे नहीं, क्यों भाई? ये सब जो छोटे छोटे गुनाह ये बड़े बन जाते हैं, ये छोटे छोटे गुनाह। इसलिए नौजवानों इस्लाह करके उठो, और हमारे बुजुर्गों, आप तो हमारे बड़े हैं, वालिद के मकाम पर फायद है, आपका बेटा हूं मैं, अगर गलत कह रहा हूं तो इस्लाह करिए। क्या ये सिगरेट बीड़ी नुकसानदेह है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, है कि नहीं? लेकिन क्यों पीते हो? जानते हो? अच्छा देखिए, कंपनी ने भी आपको बता दिया, इसमें गवर्नमेंट की कोई शिकायत नहीं, गवर्नमेंट ने आपको बता दिया। कभी भी आप गौर कीजिए, गोल्डफ्लेक डब्बे पे या ये गुटखा के डब्बे पे देखिए, लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए नुकसानदेह है, लिखा रहता है कि नहीं? बिच्छी बनी रहती है कि नहीं? देखिए, पहले ये चीज नहीं आता था, ये बिच्छी बना हुआ और लिखा हुआ नहीं आता था। आता था पहले? नहीं आता था। गौर कीजिए, पीछे चले जाइए, एकदम पीछे नहीं है। साजिश कैसे? पहले इनको आदत दिलाओ, धीरे 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 जब आदत पड़ जाएगी, उसके बाद लिख के डाल दो सेहत के लिए नुकसानदेह। अब वो तो काम कर बना, हम लोग बेवकूफ बन गए, यहाँ पर आदत डाल दो, बेवकूफ बनेंगे नहीं। वहां पर तो काम करके शुरू में तो आदत दिला दिए, बाद में बेवकूफ बन गए हम लोग। ये सब नुकसान दो चीज, ये बहुत अहम बात है जो बता रहा हूँ। और इसकी वजह से अगर 12 बच्चे हैं घर के अंदर और एक कमाने वाला है और सिगरेट पी रहा है, गुटखा पी रहा है, और इसी में कैंसर हो गया, दिल में ब्लड कैंसर हो गया, अल्लाह ना करे कभी ऐसा, आमीन बोलिए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा। अगर 12 घरों का जिम्मेदार एक आदमी अगर वो सिगरेट या तंबाकू या दारू की वजह से, बियर या शराब की वजह से अगर उसको ब्लड कैंसर हो गया, तो बताओ उस 12 बच्चों के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर, उसकी बहनों के ऊपर क्या गुजरेगी? कभी सोचा? आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे कई लोग हैं, एक खानदान है आपके पीछे। कभी सोचा कि आपका बेटा आपसे कितना मोहब्बत करता है, लेकिन बेटा शर्म के मारे बाप को नहीं कह पाता, शर्म के मारे बाप को नहीं कह पाता। बोलो, हक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा? बताइए, शर्म के मारे नौजवान बेटा बाप को नहीं कह पाता है, और नौजवान अगर ये काम करता है तो बाप फौरन बोलता है क्या कर रहा है, और जो हम खुद कर रही है। तो इसलिए ये भी तौबा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से सिगरेट, खैनी, तंबाकू सब छोड़ देंगे।
लग रहा तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब की बात नहीं है आप लोगों की, क्योंकि करते हैं लेकिन मतलब की बात नहीं है ना ऐसा, इसीलिए तवज्जो नहीं। मैं देख रहा हूँ ऐसा नजरअंदाज कर रहे हैं मौलाना, हम सुनी नहीं, कहते नहीं है ना। बोलिए इंशाअल्लाह आपके बात से सब बंद करेंगे इंशाअल्लाह। 4 आवाज आइए मस्जिद, अल्लाह से नेक बंदे 4 है। अरे बोलो तो इंशाअल्लाह। हराम चीज है ये, इस देश से मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, हराम चीज है, कोई मकरूह तहरीमी मकरूह तंजीही नहीं है, हराम है। बोलो इंशाअल्लाह बंद करोगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ और बहनों, आपके पास भी एक मैसेज दे रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ, आप हमारी माँ और बहन, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपको मुर्तबाना गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते सिर्फ और सिर्फ जो भी मेकअप, जो भी सजना धजना किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ शोहर के लिए जाए। पूरा कुरान हदीस पढ़ लो, कहीं किसी और के लिए दुरुस्त नहीं है। शादी पार्टी, केक पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी, और वैसे भी ये बर्थडे पार्टी और जो आजकल के शादियां चल रही हैं ये सब तो नाजायज है, तरीके से जायज नहीं है। जो चल रही है शरीयत के खिलाफ है, ये सब नाजायज है। तो इंशाअल्लाह मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला से तो तौबा करो, वादा करो उसी पिंडाल के अंदर, जहां भी होने नहीं मालूम कहाँ हो, जहां भी होते इंशाअल्लाह, अगर हम शादीशुदा है हमारी माँ और बहन, सिर्फ और सिर्फ सजना सजना अपने शोहर के लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला देख रहा, हम और आप नहीं देख रहे, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला देख रहा। अब उसके बाद शोहरों की जिम्मेदारी, अगर उसके बाद अगर आपकी बीवियां आपके अलावा किसी गैर के लिए सजना धजना करती है, तब लाना दाना बंद कर सकते हैं आप, कोई मेकअप का सामान नहीं आएगा, जाओ ऐसे जाना दो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये इस्लाह का तरीका। क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब आप मना करेंगे तो अनबन होगा, तनाव होगा, झगड़ा होगा, तलाक की सूरत आएगी, होता है ना ऐसा, अनबन होगा। अब औरत तो टेढ़ी पसली की है, जब उसको बैठा कर समझाएंगे प्यार मोहब्बत से, देखो अज़वाज मुतहहरात ऐसे रहा करती थी, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 72 टेबल के कपड़े पहन कर रहा, पेट भर खाना नहीं खाती थी कि रब का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, नींद लग जाएगी। मेरी माँ और बहनों, कभी गौर किया, कभी गौर किया, वो भी औरत और आप भी हैं, क्या फर्क है? अल्लाह के वास्ते तौबा इस्तग़फ़ार करो और ये वादा करके उठो कि हम सिर्फ उसे अपने शोहर के लिए करेंगे और बच्चों को तालीम अच्छा देंगे। बच्चों को तालीम, अगर आपके गंजद्वारा में अदारा है तो अदारा में इंशाअल्लाह भेजेंगे, बच्चों को तालीम कुरान हदीस का देना जरूरी है। बोलो इंशाअल्लाह दोगे। और अगर नौजवान है नहीं तालीम पा सके तो शर्माओ मत, इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। आप इंशाअल्लाह बोलो कुरान हदीस का तालीम मौलाना अजमल साहब के पास या मौलवी इमरान साहब के पास या जो भी है उलमाए कराम मौजूद है, मौलवी अब्दुल वहीद सलफी, इन लोगों के पास आकर आप इंशाअल्लाह वादा करके दो कि हम कुरान हदीस की तालीम बगैर हिचकिचाहट, बगैर शर्म हया के हासिल करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बगैर शर्म और हया के हासिल करेंगे। पूछेंगे एक मसला, ये आपके मोतबर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम है, पूछो इनसे, ठीक है। हमारे शेख तशरीफ ला रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे इजाजत दीजिए और अल्लाह ताला से अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। अच्छा, 23 तारीख को हमारा जो सेंटर है, जो काम कर रहा है सेंटर, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख को एक जलसा हो रहा है जिसमें मौलुद्दीन इब्न नसरुल्लाह और फकीर मोहम्मदी मेरी निजामत है उसमें, और शंकराचार्य लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य आ रहे हैं, जगत गुरु, ठीक है। तो वो लोग आ रहे हैं, तो आप लोग भी उसमें शामिल हो। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा कॉन्फ्रेंस है 23 तारीख को, भूले ना। 23 तारीख को शाम को 7:30 बजे मिर्जापुर यूपी इलाहाबाद से आगे पड़ता है, आप लोग जरूर वहाँ पे शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम।